The Bible says बाइबल बताती है in 1 Thessalonians पहले थिस्सलुनीकियों chapter 5 verse 18, 5:18 में Bible says that in everything means बाइबल कहती everything. है हर एक परिस्थिति In में everything give thanks. There is a will of God in Christ Jesus for हर you. परिस्थिति में धन्यवाद देते रहो क्योंकि प्रभु की इच्छा है आपके लिए मसीह यीशु में। Amen. आमेन। In everything means everything. हर Whether परिस्थिति good मतलब or bad, God says give thanks to God. परमेश्वर कहता है प्रभु को धन्यवाद दो अच्छे बुरे हर समय। Amen. आमेन। But people, we are very selfish. लेकिन हम तो कितने स्वार्थी हैं। We are very selfish. हम सब बहुत स्वार्थी हैं। Today I will directly hit the point for मैं कह रहा everyone. मैं सीधा-सीधा बात करूंगा Because my sermon is written that when we give thanks, there is a power. क्योंकि इनका आज का संदेश ये है कि जब हम धन्यवाद देते हैं तो सामर्थ आता है। So I will just hit the point तो for मैं कह रहा everyone. मैं आज सिर्फ सीधी-सीधी बात करूंगा। And those who are look online also. तो जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, When the circumstances come, जब परिस्थितियां आती है, when sickness comes, जब बीमारी आती है, we are very selfish हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। to give thanks to God. तब We हम are प्रभु very को धन्यवाद selfish. नहीं देते हैं। We do not know the scripture. हमें नहीं पता वचन Because of that, और इसलिए your life आपका जीवन is very selfish. बहुत स्वार्थी है। In the Bible says in Romans chapter 8 verse 28 बाइबल का says, वचन कहता है रोमियो के 8:28 whether में, good or bad, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, see, whether good or bad, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, God says there is a plan and purpose. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में, Because God loves you. क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। But we do not know the पर scripture. हम नहीं जानते ना कि वचन में क्या In लिखा है। Matthew 22 verse 29 says, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 22 के 29 you are में mistaken. कि तुम You are mistaken. मतलब कि मिस्टेकन है हम लोग। You are greedy. You are selfish. हम You are लोग- mistaken. हम लोग क्या है? हम लोग स्वार्थी हैं, लालची, अपना ही सोचते हैं। See, when, for example, जैसे कि for our, for our sister, example, जैसे मेरे लिए उदाहरण दे रहे when हैं, I give tablet for her, जब ये मुझे टैबलेट दे रहे हैं, she will be happy मैं इतनी खुश हो जाऊंगी, वाह, and she will thank God. अरे वाह परमेश्वर मुझे टैबलेट मिला है आज। And when she didn't get anything, लेकिन जब मिला ही नहीं, she will not thank God, तो क्यों धन्यवाद दूं मैं? right? ऐसा ही होता है ना। When she gets sickness, जब मुझे बीमारी मिलती है, she will not thank God. तो मैं प्रभु को धन्यवाद She नहीं will दूंगी, start complaining. मैं शिकायतें She will करूंगी, have doubt. मैं शक करूंगी। When you know the scripture, लेकिन जब आपको वचन पता होता है, you will know how to thank God. आपको पता चले कि धन्यवाद देना कैसे है। Amen. आमेन। Our Reverend, you will know that General Secretary Ramphon, no? Yeah. MBC General तो Secretary. एमबीसी जनरल सेक्रेटरी जो है, He went to toilet वो टॉयलेट गए, and he did number 2 तो वो नंबर 2 कर रहे थे, and the coming out तो कर रहे थे, and inside the toilet itself तो टॉयलेट में ही he said, "Praise God, thank God." उन्होंने चिल्लाया परमेश्वर को धन्यवाद। So what the Bible says, we need to do it. तो प्रभु कहते हैं कि हमें हर समय धन्यवाद देना चाहिए। Amen. आमेन। We need to thank God in everything. तो हमें परमेश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। Everything means everything. हर परिस्थिति मतलब हर परिस्थिति। Not in one thing. ये नहीं कि जब अच्छा मिल रहा When है, you get tablets, जब आपको टैबलेट मिल गया, when you get good things in your आपको life, बढ़िया चीजें मिल गई जीवन only में, that time. सिर्फ उस समय नहीं, Don't thank. सिर्फ उस समय In धन्यवाद every दें, time, लेकिन हर परिस्थिति thank में God. धन्यवाद दें। Amen. आमेन। I'm not my English, my grammar will not be good, but I'm trying my best to speak in English. मैं कह रहा पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छी भाषा, इंग्लिश भाषा बोलने की। Please try to understand it. तो आपको अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए। I believe you can understand it, no? हिंदी भी है ना? Okay. So in everything means everything. मतलब What the Bible says, we need to do it. तो बाइबल क्या कहती है कि हर परिस्थिति में If you are a children of God, अगर आप प्रभु की संतान हैं, knows the scripture, तो आपको वचन पता होना
चाहिए। And when you know the और जब scripture, वचन पता होगा the more you give तो जितना thanks to धन्यवाद God, आप you प्रभु को are देंगे, demonstrate उतना ही आप your क्या दिखाए हैं, आपका your विश्वास, heart, अपना दिल, and you are opening the door. मतलब आप प्रभु के लिए रास्ते खोल रहे हैं। And when you open the door, तो जब आप दरवाजे खोलते हैं you will be a powerful woman and a man. तो आप परमेश्वर की सामर्थी जन बन जाएंगे। Amen. आमीन। So what the Bible says in Romans chapter 8 verse तो Romans रोमियो की chapter पुस्तक- 5 verse 8, तो परमेश्वर का वचन रोमियो के 5 के 8 में क्या what कहता the है? Bible says, कि बाइबल क्या कहती है? God demonstrates His own love परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया toward us हम पर, while we are still sinners. कब दिखाया? जब हम पापी Christ थे। died for us in the Calvary यीशु cross. मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारे गए। So same as that. तो ऐसे ही What the Bible says in everything means everything. I repeat again. तो बाइबल क्या बताती है? हर परिस्थिति मतलब हर When you have a परिस्थिति hard time, जब मुश्किल है, when you have a bad situation, जब बुरी परिस्थिति when you है, have a sickness, जब बीमारी है, when you get something, जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, every situation, हर give एक thanks. परिस्थिति में धन्यवाद दें। When you demonstrate your thanks to God, जब आप अपना धन्यवाद परमेश्वर you को are दिखाते हैं, opening the तो door. आप रास्ते खोल रहे हैं। Amen. आमीन। When you open the door, तो जब आप रास्ते खोलते हैं, you will live a powerful life. आप एक सामर्थी जीवन And जीते you हैं, will live a happy life. आप एक खुशी जीवन जीते हैं। I will give you one example. मैं एक उदाहरण देंगे। Your face, आपकी शक्ल, you didn't have a good face. जैसे मान लीजिए आपकी अच्छी शक्ल नहीं है, You are not high, या जैसे लंबी हाइट भी नहीं है, and you didn't have a money. पैसा भी नहीं है जेब में, But till then, पर उसके बाद भी give thanks. प्रभु को धन्यवाद दें। You are opening the door. अगर आप उस समय धन्यवाद देते तो आप रास्ते खोल रहे हैं, That door और वो रास्ता will not condemn you. वो रास्ता आपको नकारेगा नहीं। When you live for yourself, जब आप अपने लिए जीते you हैं will condemn yourself. तो आप अपने आप को नकारेंगे भी, When you give thanks to God, लेकिन जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे your face will smile. तो आपकी शक्ल में खुशी If होगी। you didn't have money also, you will पैसा thank नहीं है God तो भी आप प्रभु को धन्यवाद in देंगे every situation. हर एक परिस्थिति में। When I come to Delhi, भले कहते मैं दिल्ली I आया, didn't have anything, पैसा भी but नहीं the था, more I thank पर God, जितना प्रभु को the धन्यवाद दिया, more God opened the उतना door. प्रभु ने रास्ते खोल दिए। And when I stayed in Delhi, भले कहते मैं दिल्ली में रहा, blessing followed me. आशीष मेरे पीछे आने लग गए। Because क्यों आए? when we walk together with क्योंकि the जब Word हम of प्रभु God, के साथ what the चलते हैं, Bible says, let's go back to बाइबल the क्या Bible. कहती है बाइबल में? In Philippians chapter 4 verse 6, फिलिपियों 4 के 6 में what the Bible says was, do not बाइबल worry कहती है, किसी भी anything, चीज की चिंता मत करो, but pray and ask for पर क्या everything करो? you need. जो भी चीज चाहिए उसके लिए मांगो प्रभु से। Always give thanks हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दो, for what you have. क्योंकि मिल चुका है उसको What the धन्यवाद Bible दो। says was, तो बाइबल क्या बता रही है? when you have dress, जब कपड़े हैं good or bad, अच्छे या बुरे, give thanks. धन्यवाद दें। Because क्यों दें? if you didn't have dress, you cannot wear it. तो कपड़े होते ही नहीं तो आप पहनते ही नहीं। So what you have, good or bad, let it be. तो Give चाहे thanks. कपड़ा अच्छा है चाहे नहीं है, कम से कम है तो उसके लिए धन्यवाद दें। The more you give तो thanks, जितना प्रभु को धन्यवाद देते हैं, door will open. आपके उतने रास्ते खुलते हैं। For example, जैसे कि your sister. Pretty. Okay. When I thank her, तो मैं ये कहती हूँ आप ये मुझे धन्यवाद देते हैं Pretty, you are look very beautiful. कि आज मैं ठीक लग रही हूँ, She was smile, right? मैं खुश हो जाऊंगी ना। So same as that. तो ऐसे ही है। When I thank God, तो ऐसे जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, God also will open the door. प्रभु भी खुश हो जाते हैं और रास्ते खोलते हैं। God heart. प्रभु का दिल खुल जाता When है। open the door, जब रास्ता खुलता है, whatever you need, जो भी आपको चाहिए God will give you. प्रभु देता है। So do not worry तो about चिंता anything. नहीं करनी है किसी भी चीज के बारे में। When you travel anywhere, जब आप भी कहीं पर भी सफर करते हैं don't worry तो चिंता ना करें, because क्योंकि Bible says बाइबल क्या बताती in है? Deuteronomy 31 verse 8 says, व्यवस्था विवरण 31 के 8 में लिखा है and the Lord, कि परमेश्वर I'm the one who goes before you. जो तुम्हारे आगे जाता है, I will not let you. मैं तुम्हें छोड़ूंगा I will नहीं, not forsake you. मैं तुम्हें त्यागूंगा Do नहीं, not be feared. तो तुम्हें डरना नहीं Do है, not be discouraged. तुम्हें निराश नहीं That's होना what the है। Bible says. ये बाइबल बताती But है। when the sickness comes, लेकिन जब बीमारी आती you will है, have discouraged. हम तो निराश You हो will जाते have हैं, doubt. हम शक You will करते have हैं, confusion. हम कंफ्यूज हो You जाते will हैं, visit the Bible. हम बाइबल नहीं ध्यान देते। When you visit the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं
your faith आपका विश्वास will grow like this. तो बढ़ता ही जाता है। And when your sickness, और जब बीमारी ठीक हो जाती है your faith will come like this again. तो आपका विश्वास फिर थोड़ा हो जाता है। So don't do that. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। In everything, हर एक परिस्थिति when you में give thanks, जब आप धन्यवाद देते हैं your faith आपका will विश्वास always grow bigger, बढ़ना ही bigger, बढ़ना bigger, चाहिए। and bigger in your life. आपके जीवन में। So in Matthew says again, तो बाइबल क्या बताती है मैथ्यू में? in Matthew chapter 6 verse 34 says again, मत्ती का सुसमाचार 6 के I will 24 give में you the लिखा है। reference. मैं क्या आपको रेफरेंस In दे रहा हूँ। Philippians chapter 4 verse 6 says, फिलिपियों "Don't 4 के worry." 6 में क्या लिखा है? किसी भी चीज की चिंता मत करो। But in Matthew chapter 6 verse 34 says again that, कि मत्ती के 6 के 34 में भी लिखा do है not worry. कि चिंता मत करो। That's what the Bible says. बाइबल ये कह रही है। But we are worried. पर हम क्या करते हैं? चिंता When करते हैं। sickness comes, we are बीमारी आती है, हम worried. चिंता कर When the लेते हैं। circumstances जब come, we are परेशानी आती worried. है, हम चिंता कर लेते हैं। When we have two options in our life, जब हमारे जीवन में दो चुनाव करने की चीजें होती हैं what to choose and what not to कि मैं choose, ये लूं कि ये लूं, we are worried for हम that. चिंता करते हैं क्या करें क्या करें। What the Bible says, we need to बाइबल come. क्या कहती है? हर We need समय to come to God. प्रभु के पास आना The है। Bible says, do not worry, Bible but तो pray for everything. बाइबल कह रही है किसी भी चीज की चिंता मत करो, पर करो क्या? प्रार्थना करो। When you pray to God, तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, God will answer our prayer. परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर भी देगा। Amen. आमेन Amen. आमेन। I believe you understand my English. भैया कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हो क्या बता रहे हैं। Okay, so much. Okay. God is good so much. Okay. We need to walk together with the words of God. हमें परमेश्वर के वचन के साथ चलना है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। We claim that we are the children of आप God. बोलते तो इतना घमंड करिए कि हम प्रभु की संतान हैं। For example, when I ask one thing about the Bible, तो जैसे कि भैया कह रहे हैं, अगर मैं आपसे बाइबल के बारे में कुछ पूछ लूं, in New Testament, how much have? Like how much book have? नए नियम में कितनी किताबें हैं? For example, when I ask to someone, जैसे भैया कह रहे हैं, मैं किसी से पूछ लूं, they will not know, शायद किसी को नहीं पता होगा। right? नहीं पता है। Some people will not know. कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं We पता। claim that we are the children of God, हम कहते तो हम प्रभु की संतान हैं, but पर बाइबल के our बारे में mistake. पर बाइबल के बारे में भी हमें नहीं पता है अच्छे से। And when I ask about perfume, और भैया अगर मुझे परफ्यूम कौन सा चल or रहा है when I आजकल, ask to girls, और लड़कियों के बारे में पूछे what is good for our face, शक्ल में कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, they will speak everything. वो बताएगी ये ब्रांड की ले लो भैया, ये अच्छी होती है। But when I ask about the Bible, पर बाइबल के बारे में पूछ लेगा, they will not know. वो तो नहीं पता है। And we claim ourselves that we are the children और of फिर हम God. चिल्ला चिल्ला के Why बोलते we हैं are very कि हम तो प्रभु की selfish, संतान living हैं, for मतलब ourselves. तो हम अपने लिए ही जी रहे हैं। Why you didn't give thanks to तो क्यों God? प्रभु को धन्यवाद नहीं What the देते? Bible says, give thanks. तो Man. बाइबल We में need to give धन्यवाद thanks दें। with all our heart हमें पूरे and दिल with के all, साथ with धन्यवाद दें। everything what we have. हर एक चीज जो हमारे पास है उसके साथ धन्यवाद देना है। When you give thanks to God, तो जब हम परमेश्वर को धन्यवाद in देते your हैं, life you will transform your life. आपके जीवन बदल जाता है। If you didn't have anything also, अगर आज आपके पास कुछ नहीं kneel है, down and तो praise घुटनों God. पर आए और प्रार्थना कर प्रभु को धन्यवाद दें। Kneel down and give thanks to घुटनों God पे आके for what परमेश्वर you को have. धन्यवाद दें, कम से कम जीवन है आपके The पास। more you give thanks, the more you praise Him, the more you give thanks, the more God will तो open the जितना door. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर उतना ही आपके दरवाजे खोलता जाता है। Amen. आमीन। I will call one scripture again भैया कह रहे मैं एक वचन बताऊंगा in Philippians chapter 3, पर मैं फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 13 and 14. 3 का 13 14 Can you please read from English? हिंदी Yeah. Oh, yeah. Hindi. फिलिपियों 3 का 13 14 पेज नंबर 274। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Amen. Paul says, तो पौलुस क्या कह रहा है all the past, कि जितना पहले हुआ you forget it. सब भूल जाओ, भूल जाओ. Huh? Forget it. सब भूल जाओ।
Today, आज when you come in the presence of तो God, जब आज आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं look to Jesus. तो सिर्फ यीशु की ओर निहारें, Look to Jesus. सिर्फ यीशु को देखें, Look to Jesus and give thanks to God. सिर्फ यीशु को देखें और धन्यवाद दें। Amen. आमीन। Forget everything सब कुछ भूल जाए about your past. कि पहले मैंने क्या क्या किया। When I look about my तो past, भैया कह रहे जब मैं अपने पुराने अतीत के बारे में सोचता हूँ and when I go back to past, और मैं अतीत में जाता हूँ what I will, in which situation I will live? तो भैया कह रहे मैं कैसी परिस्थिति में था। I will live in wrong way. तो भैया कह रहे अगर मैं पुराना जीवन सोच सोच के चलूंगा तो मैं गलत जीवन ही जीऊंगा। The more I preach, जितना प्रचार करते हैं what I preach, I should say, what I preach, भैया कह रहे मैंने प्रचार किया that everything will be empty. तो फिर मेरा प्रचार तो एकदम खाली है, कुछ नहीं होगा And people will condemn me. और लोग तो नकारेंगे। So don't look back to your तो past. पुराने जीवन को छोड़ देना है। Amen. आमीन। Don't look back to your past, तो अब अपना पुराना जीवन ना सोचे but look to Jesus. पर अब यीशु की ओर देखें। Forget everything and come to the presence of God भूल जाए परमेश्वर की उपस्थिति में रखें and give thanks from your heart. और अपने पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद। If you do not know how to give thanks, अगर आपको धन्यवाद देना नहीं आता let me tell you. तो भैया कह रहे बताता हूँ, If you do not know how to give thanks, अगर आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं आता I will quote the scripture. भैया कह रहे इसको मैं आपको वचन बताता हूँ। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? In Proverbs नीति वचन 17 verse 22 says, 17 के 22 में लिखा है happiness is a medicine कि खुशी एक दवाई है and sorrow is a disease. कि दुख एक बीमारी है। If you do not know how to give thanks to God, अगर आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं आता just sit in your room सिर्फ अपने कमरे में बैठे and think, और सोचें, meditate सोचें, ध्यान लगाएं what the Lord has done कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया and happy yourself. और वो सोच सोच के आपको खुशी होगी, Happy yourself. अपने आप आनंदित आए हो जाओगे आप। Sit in your room, अपने कमरे में बैठे kneel down घुटनों पे आए, and think what God has सिर्फ done. सोचें कि मेरा जीवन पहले क्या था और आज क्या है। When you think, तो आप सोचेंगे, you will smile. आप खुश हो जाएंगे, शक्ल पे मुस्कुराहट आएगी। When you think, you will have happy in your heart. तो जब आप सोचेंगे तो आपका दिल एकदम आनंदित हो जाएगा। When the happiness comes from your heart, और जब वो खुशी आपके दिल से आएगी, you will start crying. आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। Don't be very selfish. तो सिर्फ स्वार्थी ना हो। So sorrow is a disease. That's what the तो Bible says. दुख एक बीमारी है। If you are selfish, अगर आप स्वार्थी हैं, you will be in the diseases. तो आप दुख में ही रहेंगे, बीमारी In में the नहीं। spiritual. आत्मा की बीमारी की बात हो रही है। Amen. That's what the Bible says. ये in बाइबल the में- read version. Easy to read version. जो इजी वर्जन है उसमें बाइबल ही बताती है। Amen. आमीन। In my life, I will give a illustration. तो भैया कह रहे मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। I give up all the worldly desire, भैया कह रहे मैंने दुनियादारी की सारी इच्छा छोड़ दी है and after that, I kneel down to God before I surrender to God. और प्रभु को समर्पण करने से पहले भैया कह रहे मैंने घुटनों पे आया I kneel down to God, और प्रभु के सामने घुटने टेके and in Sanapati, और सेनापति में मणिपुर में I kneel down to God, भैया कह रहे मैंने घुटने पे आया and I think it over and over again. और भैया कह रहे मैं सोचता रहा And my tears coming down. और आंसू निकलते रहे। And when my tears come down, तो जब आंसू आए I have a boldness भैया कह रहे मेरे अंदर एक हियाव आया that I will work for Him. कि नहीं मुझे प्रभु के लिए काम करना है। Amen. So same as that. तो ऐसे ही When you go back to your room, तो जब आप अपने कमरे में आप जाते हैं think it over and over again. तो थोड़ी देर तक बैठ के सिर्फ सोचते रहे। When you think it over and over again, Satan will come and attack you तो again. जब आप बहुत देर तक सोचने बैठेंगे तो शैतान आके आप पे आक्रमण भी करने की कोशिश करेगा। You have worked in the kitchen. अरे क्या खाली टाइम पास कर ले, किचन में की काम कर ले। You have worked in the washroom. अरे वॉशरूम में जाके मुंह धो ले। You have worked in the phone. अरे अपना फोन लेके कुछ देख ले।
that mind will come. वो चीज आएगी जब आप प्रभु के बारे में सोचना शुरू करोगे। What the Bible says. पर बाइबल क्या We कहता need है? to know. हमें पता होना In चाहिए। Proverbs chapter 4 verse 24 says, नीति वचन 4:24 में लिखा है, your thoughts control your life. क्योंकि आपकी सोच आपका जीवन चलाती है। So let your thoughts तो आपकी control सोच by the words of God. प्रभु के वचन के द्वारा पकड़ी जानी चाहिए। When you control your life, तो जब आप जीवन को पकड़ लेते हैं, you are selfish. तो अपना जीवन आप खुद चलाते तो आप स्वार्थी Let हैं। God control लेकिन your जब life. प्रभु आपके जीवन को चलाता है, When you sit inside the room, जब आप कमरे में बैठते हैं meditate. और सोचते हैं, When you meditate, जब ध्यान लगाते हैं, your tears will come down. आपके आंसू निकलेंगे। When the tears come down, और जब आंसू आए, same as to me, तो भैया कह रहे मेरे साथ भी it हुआ, will happen in you. आपके साथ भी होगा। You will start crying, आपको रोना आएगा and you will know how to give thanks. और to आपको God. पता लगेगा कि प्रभु को धन्यवाद कैसे देना है। When you live for yourself, then जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं, you will be very selfish, आप स्वार्थी हो and जाएंगे you will not know what God has और done. आपको नहीं पता चलेगा कभी कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या कर दिया। But when you meditate, लेकिन जब ध्यान देते हैं, you will not live for yourself. तो आप अपने लिए नहीं जीते हैं, You will live for आप Christ. प्रभु के लिए जीते हैं। And when you live for तो Christ, जब प्रभु के लिए जीते हैं, in 2025, 2025 में, 2024 is trying to complete. अभी 2024 खत्म हो रहा है, 2025, 2025 में God speak to me when I sit here. पहले कह रहे जब यहाँ बैठा था प्रभु ने मुझसे बोला, People, those who are coming over here, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, they have a plan, उनकी जीवन में योजनाएं हैं, but they didn't share to anyone. लेकिन उनकी इसे बांटते नहीं। God says, प्रभु कहता है, come to me, I will bless you. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। And that, what your secret, your mystery, I should say, तो जो भी आपका रहस्य है, what the Bible says was, in Gospel John chapter 15 verse 7 say, तो यूहन्ना 15:7 में क्या लिखा है? if you abide in me, अगर तुम मुझे बने रहो abide in my और words, मेरा वचन तुम में बना रहे, whatever you तो desire, जो भी तुम इच्छा रखोगे, God will done for प्रभु कर देगा तुम्हारे। you. So today all your mysteries, तो जो भी आपके रहस्य हैं, God knows everything. प्रभु जानता है कि आपकी योजनाएं क्या In है। Hebrews chapter 4 verse 13 says, इब्रानियों के 4:13 में लिखा है God eyes is a naked eyes. कि प्रभु की आंखें एकदम खुली हुई हैं। God knows everything. प्रभु को सब पता है कहाँ क्या चल रहा है। When you come over here in the church, जब आप यहाँ कलीसिया में आए हैं, God knows your sickness. प्रभु जान रहा है कि बीमारी क्या क्या है। God knows your problem. प्रभु जानता है आपकी बीमारियां क्या है। If you have a financial अगर problem, पैसों की प्रॉब्लम है, God knows everything. प्रभु जानता है। So today is your day तो आज आपका दिन है to come to Jesus. कि आप प्रभु के पास आए, Come to the cross. कि आप क्रूस पे आए। When you come to the जब आप cross, क्रूस के पास आते हैं, when we come to the cross, जब हम क्रूस के पास आते हैं, be happy and come तो आप खुश होके आए that you will receive something. और आज परमेश्वर को कुछ देगा। Amen. आमीन। I will not give anything, तो भैया कह रहे मैं कुछ नहीं दूंगा, but God will pour blessing to each and पर every. परमेश्वर हर किसी व्यक्ति को आशीष देगा। Amen. आमीन। God knows where you are going, परमेश्वर जानता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, what your thoughts कि is, क्या आपकी सोच है। and you are sitting here and your mind is outside. आप यहाँ बैठे तो है, लेकिन कईयों का मन तो अभी बाहर ही है। God knows everything. प्रभु सब जानते हैं। Today, आज I just want to give a blessing for each and every one. भैया कह रहे मैं हर किसी व्यक्ति को आशीष देना चाहता हूँ। In Romans chapter 1 verse 11 says, रोमियो की 1:11 में लिखा है in part, कि दो, in part, कि इम्पार्ट करो and you will establish in your life. और वो चीज़ तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। Amen. आमीन। What the Bible says, तो बाइबल बताती है Acts chapter 3 verse 6, कि प्रेरितों के काम के अंदर 3:6 में I didn't have anything, कि मेरे पास तो कुछ नहीं, but in the name of लेकिन Jesus. सिर्फ यीशु के नाम में। Amen. I didn't bring anything, तो भैया कह रहे मैं भी कुछ नहीं लाया, but I want to give something for पर मैं आपको you. कुछ देना चाहता हूँ। I will not do it, मैं नहीं करूँगा, but God will do it. पर प्रभु करेगा सब कुछ। So we need to give thanks to God तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना before we है, receive something. कुछ पाने से पहले। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Good or bad? अच्छा या बुरा? Huh? अच्छा है? And before I conclude my
my sermon, तो भैया कह रहे प्रचार को खत्म करने से पहले please pray for me. तो भैया कह रहे मेरे लिए प्रार्थना करें। I have an exam. My Well- exam is coming up. भैया कह रहे मेरे भी एग्जाम आने I वाले have a final exam, but till then, Miss called me, Pastor called me. तो भैया कह रहे मेरे फाइनल एग्जाम थे लेकिन उससे पहले पास्टर ने इनको बुलाया। I prayed to God and I came for each and every तो one. भैया कह रहे मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और हर किसी से मिलने के लिए आए। My tight schedule, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल but till then I pray and I do it by sermon. तो भैया कह रहे कि मैं बहुत टाइट शेड्यूल था लेकिन फिर भी मैंने प्रचार को जल्दी जल्दी में रेडी किया। So from here I will complete my sermon. तो भैया कह रहे इसलिए मैं आज का प्रचार ही खत्म करूँगा। Before I complete, और खत्म करने से पहले I just want to bless everyone. तो भैया कह रहे मैं हर किसी को आशीष देना चाहता हूँ। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? So everyone, let's close our eyes. तो हर कोई व्यक्ति आंखें बंद करे। If we are the children of God, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं what the scripture says, तो वचन क्या कहता है? we need to do it. हमें वो करना है। One of the officers says, एक ऑफिसर ने कहा how much I have money कितना ही मेरा पैसा हो without Jesus, लेकिन यीशु ना हो I didn't find a peace. तो शांति नहीं। So with the scripture we will impart together. तो वचन के द्वारा हम सब पाएंगे। In Gospel John chapter 8 verse 47 says, तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार 8:47 में if we are the children of कि God, अगर हम प्रभु की संतान हैं we will hear the voice of God. हम प्रभु की आवाज सुनेंगे। If we are not the children of अगर God, हम प्रभु की संतान नहीं we will not hear the voice of हम God. प्रभु की आवाज नहीं सुनेंगे। That is a proof in the Bible. ये बाइबल में लिखा हुआ है। So if you hear the voice of God, अगर आप प्रभु की आवाज सुने I'm not speaking to each and everyone, भैया but कह रहे मैं हर किसी को God तो नहीं speaks to बोलूँ each and तो everyone. प्रभु हर किसी से बात करेगा। In Hebrews chapter 12 verse 2 says, इब्रानी के वचन में 12:2 में fix your eyes on Jesus. कि अपनी आंखें यीशु की ओर लगा। So don't fix on me, तो भैया पर नहीं fix on Jesus. सिर्फ यीशु की ओर लगा। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, I invite your Holy Spirit in this place. परमेश्वर की आत्मा को बुलाते हैं यहाँ पर। Without your Holy Spirit, we cannot do anything. परमेश्वर हम आपकी पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते। Your word says in Hebrews chapter 1 verse 4, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के 1:14 में angels are the ministry spirit. कि परमेश्वर में जो स्वर्गदूत है वो हमें मतलब मिनिस्टर करते हैं। So we invite you right now. तो हमको भी बुलाते हैं। So those who have a problems तो जिनके भी जीवन में परेशानी है and those who have a sickness, जिनके जीवन को बीमारी है in Gospel John chapter 19 verse 30 says, तो यूहन्ना के 9:30 में लिखा है it is finished, सब खत्म हुआ, it is over. सब खत्म। What the Bible says, do not worry. बाइबल क्या बताती है चिंता मत करो। So today, तो आज God is inviting you right परमेश्वर हर किसी व्यक्ति को बुला रहा है। in Matthew 11 verse 28 says, मत्ती के 11:28 में क्या लिखा है come. कि आओ, God is inviting you. परमेश्वर बुला रहा है।